Hello, good morning students. I hope all are you doing good. So today we are going to learn lesson number 2. The name of the lesson, as you can see here, the development of medical science. So today we are going to learn about the development of medical science, how they improvise their things and how different instruments help in the development of medical science. So here's the thing. As I read out the paragraph, I request you all to please pay attention. So the the main objective of this lesson is that we are going to learn is, first one is the invention of instruments like thermometer, stethoscope, microscope. The second objective is the contribution of scientists in the field of medicals. The third one is rules of basic health care and hygiene. It is mainly about how you can keep your health good and keep yourself hygiene. So the first thing we are going to learn is about the different types of instrument like thermometer and all. So in the ancient times, people used to think that diseases were caused by evil spirit. To cure them, they worship various forces of nature as gods and goddesses. अभी आप लोगों को पता है कि पुराना, अगर आप if you will ask your parents and all, they will definitely agree with this statement that earlier क्या था, पहले क्या होता था, जब उन लोगों को बीमार हो जाता था, अलग प्रकार का बीमार हो जाता था, तो उनका जब क्योर नहीं मिलता था उन लोगों को, तब वो लोग क्या सोचता था पुराना समय में, ये पुराना समय के बारे में बात कर रहा है. इट इज़ अबाउट द एंशिएंट टाइम्स. पीपल यूज्ड टू थिंक डिजीजेस वर कॉज्ड बाय इविल स्पिरिट. इविल स्पिरिट मतलब जो भूत प्रेत आप कहते हो, तो उनसे क्या हो जाता था कि ये बीमार लोग फैलता था बोल के ऐसे बिलीव करता था, क्योंकि उन लोगों को क्या हो गया, दे वर इग्नोरेंस टुवर्ड्स the diseases that they were getting. So today, with the development of medical science, we have developed various methods and instruments to identify a disease. We are much healthier than our ancestors. We have large number of medicals and other medical facilities to prevent diseases. लेकिन आज का समय में क्या है? We don't believe in evil spirit. We don't believe that the diseases are caused by evil spirit. But today, because of the development of medical science, we have come to the conclusions that diseases are caused by various germs and bacteria. So we are going to learn about some of the instruments which can detect our diseases. So the first thing is about the thermometer, or the second name is the clinical thermometer, as you can see here. So we are going to learn about the thermometer. Before the invention of this instrument, it was difficult to know the exact temperature of a patient's body. The thermometer gives the exact temperature of a human body in Celsius or Fahrenheit. The exact reading can help the doctor to prescribe the right treatment. पहले क्या होता था, before this instrument was not discovered, it was very difficult to measure the temperature of the body. जैसे कि आप कभी ज़्यादा बुखार हो के आप जब मेडिकल में जाते हो, तब डॉक्टर्स आपको क्या करता है, कुछ यू कैन सी दिस फिगर, तो ये चीज़ आपको क्या करता है, आपके मुंह में रख देता है कि नहीं, मुंह में रख देता है. तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको क्या बताता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर बताता है कि आपको कितना तेज बुखार है. ठीक है, आपको कितना तेज बुखार है बोल के आपको बताता है. और जब डॉक्टर्स व्हेन दे केम टू नो अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इट हेल्प्स देम टू प्रेस्क्राइब द राइट मेडिसिन्स. बिकॉज अगर यहाँ पे टेम्परेचर पता नहीं चला, आपको कितना तेज बुखार है बोल के उनको पता नहीं चला, तो उनको क्या हो जाता है, कई बार आपको ज़्यादा पावर वाला मेडिसिन दे देता है, तो वो आपका शरीर को इफेक्ट कर सकता है. लेकिन जब ये थर्मोमीटर जब डिस्कवर हुआ, तब क्या हुआ, इट हेल्प्स द डॉक्टर्स टू मेजर द राइट टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट्स बॉडी. और उसका वजह से क्या हो गया कि टेम्परेचर को राइट मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने के लिए मदद करता है. द सेकेंड चीज़ क्या है, स्टेटोस्कोप. स्टेटोस्कोप आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको कहते हैं स्टेटोस्कोप. यहाँ पे आप लोग ने कभी मेडिकल में जब जाते हो तब आपने देखा होगा, डॉक्टर का गला में होता है यहाँ पे एक लंबा सा रस्सी करके, उसको क्या कहते हैं, स्टेटोस्कोप. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटोस्कोप के बारे में यहाँ पे आपका लिखा गया है
The invention of stethoscope derives its inspiration from a child's play. रेने लेनेक यहाँ पे क्या है, द फाउंडर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज रेने लेनेक। ये नाम का इंसान ने क्या किया, ये स्टेथोस्कोप डिस्कवर किया। तो इसका स्टोरी आप लोगों को मिलता है कि क्या हुआ कि एक बार वो क्या हुआ कि ऐसे अपना क्लिनिक पे जा रहा था। उसी समय में आप नीचे में स्टोरी पढ़ने से आपको पता चलेगा कि एक बार मैं हिंदी से समझा दूंगा कि एक बार वो क्या हुआ कि अपना क्लिनिक में जा रहा था। तो दो बच्चे क्या कर रहे थे, प्लेग्राउंड में खेल रहे थे दो ऐसे कप जैसे चीज़ को, और ये दो कप की पिछला हिस्सा में उन लोग ने रस्सी को बांधा और वो रस्सी क्या हुआ दूसरे कप पे जाके कनेक्शन हुआ। तो यहाँ पे क्या करता है एक बच्चा, ये कप जैसे जो चीज़ है उसमें बोलता है, और दूसरा एंड में क्या है, दूसरा बच्चा जो कप पकड़ के रखा हुआ है उसको बहुत जोर से सुनाई देता है वो आवाज़। तो उसी चीज़ से क्या हो गया कि ये रेने लेने करके जो व्यक्ति है उसको आइडिया मिल गया कि कैसे करके अपना पेशेंट्स लोगों का दिल का धड़कन को क्लियरिटी से सुन सकता है बोल के उनको आइडिया मिल गया। तो ये चीज़ क्या हो गया, आगे धीरे धीरे जाके समय में जाके क्या हो गया, स्टेथोस्कोप नाम का ये इंस्ट्रूमेंट उनको मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेथोस्कोप कौन है इन्वेंट किया, रेने लेनेक नाम का व्यक्ति ने किया। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे थर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आपने यहाँ पे स्कूल में आते हुए आपने देखा होगा शायद कि माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं। द वर्ड माइक्रोस्कोप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, माइक्रोस और स्मॉल एंड स्कोपोस। यहाँ पे दो ग्रीक भाषा, ये अलग भाषा है, ये हमारा भारत का भाषा नहीं है, ये बाहर का जो ग्रीक सोसाइटी का जो व्यक्ति है उन लोगों का भाषा है ये। माइक्रोस्कोप किससे निकला बोलता है, दो ग्रीक वर्ड से निकला है। फर्स्ट है माइक्रोस और दूसरा है स्कोपोस। सो माइक्रोस्कोप यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वन इज माइक्रोस। माइक्रोस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, माइक्रोस का मतलब स्मॉल, द मीनिंग ऑफ द माइक्रोस इज स्मॉल, एंड द स्कोपोस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, वॉचर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, माइक्रोस और स्कोपोस को अगर मिला दिया तो इसको क्या हो जाता है, उसका मीनिंग आ जाता है स्मॉल वॉचर। मीनिंग क्या है, माइक्रोस्कोप का क्या है काम, जो हमारे ये आप आंखों से नहीं देख सकते, विच यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आइज। जहाँ पे आपको स्कूल में पढ़ाया गया है कि आपके हाथ में बहुत सारे जर्म्स होते हैं कि नहीं, आपको मैडम लोग ने पढ़ाया होगा बहुत सारे जर्म्स होते हैं, लेकिन हम क्या है, वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आइज। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप का काम क्या है, इन छोटे छोटे जर्म्स बैक्टीरियास लोगों को देखने का काम करता है ये माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप ये है। और यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्कोप टुडे वी हैव मेनी पावरफुल माइक्रोस्कोप। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्निफाइज एन ऑब्जेक्ट मिलियंस ऑफ टाइम्स। इट यूज हैज हेल्प्ड इन द फाइट अगेंस्ट मेनी ड्रेडफुल डिजीजेस। यहाँ पे माइक्रोस्कोप की वजह से क्या हुआ मदद हम लोगों को, कि जर्म्स लोगों को देखने का मौका मिला, हम लोगों को देखने पाया हम लोग, और उसमें हम लोगों को क्या मदद मिला डॉक्टर्स लोगों को, कि वो लोग डिटेक्ट कर पाया कि ये किस तरह का जर्म्स है कहकर। पहले क्या था, वो लोग जर्म्स को नहीं देख सकता था, तो उन लोगों को पता भी नहीं था कि ये जर्म्स किस रीति क्या कौन सा बीमार फैलाता है, क्या इन्फेक्शन फैलाता है। लेकिन माइक्रोस्कोप का मदद से जब उन लोग देख पाया कि किस रीति कौन सा जर्म्स है, कौन सा बैक्टीरिया है, तो उनको उनका वजह से क्या हो गया, they were able to discover the diseases that they were spreading in humans body। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइक्रोस्कोप के बारे में हमने पढ़ लिया। द सेकेंड इज कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट इन प्रीवियस
when you will look into the history, there were numbers of scientists which contributed in the development of medical science. तो हम उनके बारे में पढ़ने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग आप लोगों को मैंने पढ़ा लिया है, रेने लेनेक, उनने मदद किया है, फिर गैलीलियो और डिफरेंट टाइप का अदर मशीन्स लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि एक्सरे मशीन्स। एक्सरे पता है आपको? एक्सरे, ये एक्सरे क्या काम का आता है? आपका बोन्स लोगों का एक्सरे कर सकता है, आपका चेस्ट में जब आपको दर्द होता है तब डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं, आप चेस्ट का एक्सरे करा के लेकर आओ, ठीक है। आपको ये सब के बारे में, ये कॉमन चीज़ है, आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता है। एक्सरे मशीन्स और अलग अलग रीति का, और ये एक्सरे मशीन्स किसने डिस्कवर किया है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेज नंबर 621, यू विल फाइंड इट, W.K. रोइंटगेन इन 1896। W.K. रोइंटगेन ने क्या ये इन्वेंशन किया है एक्सरे मशीन का, ठीक है। तो यहाँ पे अलग तरीके का बहुत सारा सा चीज़ है, ECG, EEG, ये सब के आपको अच्छी तरह से, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस मशीन वेरी प्रिसाइसली, यू कैन विजिट योर नियरेस्ट हॉस्पिटल्स which provide such facilities, and you can go and ask to them how these machines works. So we will not explain those things. The second thing is about the surgery. सर्जरी के बारे में आप लोग पढ़ता है। सर्जरी क्या है? What is surgery? ये चीज जो है सर्जरी क्या है? Surgery is a process by which the doctor can cut or remove the sick or damaged part of the body. Surgery was practiced in India in ancient times. There were many surgeons in ancient India who knew a great deal about the human body. यहाँ पे सर्जरी का क्या काम है? It is a process, ठीक है। ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये कोई कुछ नहीं है, ये प्रोसेस को बोलता है सर्जरी। ये एक प्रोसेस है, ये एक कार्य है। इस कार्य में क्या होता है कि लोगों का मसल्स लोगों को काट के निकाल देते हैं जो खराब हो चुका है कि नहीं। आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको जब आप छोटे थे तो कई बार क्या हो जाता है कि बहुत सारा बॉयल्स आ जाता है आपका शरीर में, है कि नहीं। तो बॉयल्स आ जाता है, तो वो बॉयल्स इतना कभी कभी बड़ा हो जाता है या फिर स्प्रेड हो जाता है कि वो ऐसे नॉर्मल से साफ नहीं होगा वो कभी भी। तभी डॉक्टर आपको क्या प्रेस्क्राइब करेगा? गो वी हैव टू डू ए सर्जरी। वो सर्जरी में क्या करेगा आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉयल हुआ, तो ये पार्ट को उन लोग क्या करेगा, वो अच्छी तरह से काट कूट के वो अंदर का जितना भी गंदगी है उसको निकाल के वो लोग फेंक देगा। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया सर्जरी क्या है। वैसे क्या है, हमारा अंदर में किडनी होता है, लंग्स होता है कि नहीं, लीवर होता है, उन पे भी इन्फेक्शन हो जाता है कई बार। तो उन इन्फेक्शन वाला पार्ट को काट के फेंकने के लिए क्या काम है, वो उसको बोलता है सर्जरी, ठीक है। द प्रोसेस बाई विच डॉक्टर कैन कट और रिमूव, बोल के यहाँ पे लिखा है ना, कट और रिमूव द सिक और डैमेज पार्ट। यहाँ पे क्या है, उनको जो खराब पार्ट हो गया उनको काट कर फेंक देता है, उनको क्या है, वो प्रोसेस को कहता है सर्जरी। ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, आप लोग गलत नहीं सोचना है, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इट इज ए प्रोसेस टू कट और रिमूव द डैमेज ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम देखने के लिए जाएंगे सर्जरी से। और सर्जरी में यहाँ पे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है पेज नंबर 262 में हम लोग आगे, अभी आप लोग ध्यान दीजिए। ड्यूरिंग ए सर्जरी मैनी पेशेंट्स डाइड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ वुंड्स एंड जर्म्स। जोसेफ लिस्टर, यहाँ पे एक नाम आ जाता है जोसेफ ये व्यक्ति ने क्या किया, इस नाम का व्यक्ति ने क्या किया है, स्टार्टेड टू यूज कार्बोलिक एसिड टू किल जर्म्स इन ऑपरेशन थिएटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी मैंने सर्जरी के बारे में बात की है कि नहीं। तो ये सर्जरी के समय में क्या हो जाता है, कई बार लोग अपने गंदे हाथ यूज करते हैं। गंदे हाथ यूज करने का वजह से, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि यहाँ पे बहुत सारा जर्म्स होता है, अपने हाथों में जर्म्स होता है, हवा पे जर्म्स होता है कि नहीं। तो वो जर्म्स लोग क्या हो जाता है, जब ये फॉर एग्जांपल पहले जो बोला था मैंने, यहाँ पे सर्जरी का जो हुआ है, तो इसमें क्या हो जाता है, एक जर्म्स को हटाने का कारण से दूसरा जर्म्स वहाँ पे घुस जाता है कि नहीं। तो उसमें क्या हो जाता है कि बहुत लोग क्या हो गया उसी समय में, पुराना समय में है ये, मैनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है।
उनका जर्म्स का हाथ गंदे होने की वजह से वो लोग जब ऑपरेशन करता था, सर्जरी करता था, तो उनका गंदगी क्या हो जाता है, इंसान का अंदर में चला जाता है और वो उसका वजह से क्या हो गया, इन्फेक्शन हो जाता है उनका अंदर में। फिर वो क्या हो जाता है, इन्फेक्शन क्या हो जाता है, धीरे धीरे इट स्लोली क्या हो जाता है, वो लोग स्प्रेड होने के लिए शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से बहुत लोग क्या मर जाता है। तो जोसेफ लिस्टर नाम का ये व्यक्ति ने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस द कार्बोलिक एसिड बिफोर द सर्जरी। तो यहाँ पे क्या हो जाए, ये कार्बोलिक एसिड का क्या काम है, अपना सर्जरी से पहले डॉक्टर्स लोगों को क्या हो जाए, वो लोग अपना हाथ को अच्छी तरह से साफ करता है, ठीक है। और वुंड्स को जब सर्जरी का समय में काटने का समय आता है वो एरिया को भी अच्छी तरह से ये कार्बोलिक एसिड से वो लोग साफ करता है। इसका कारण से क्या होता है, वो एरिया साफ हो जाता है और उनका जर्म्स घुसने का खतरा नहीं होता है सर्जरी समय में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट थिंग हम सर्जरी के बारे में पढ़ लिया है। जब आप सर्जरी के बारे में पढ़ोगे तो ये नाम आपको याद रखना है, जोसेफ लिस्टर क्या है, सर्जरी का मदद करने के लिए उसने किसको इंट्रोड्यूस किया, कार्बोलिक एसिड करके जो जर्म्स को किल करता है उसका इंट्रोड्यूस इस व्यक्ति ने किया, ठीक है। मेडिसिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। विद एडवांसमेंट इन साइंस पीपल लर्न द कॉजेस ऑफ सेवरल डिजीजेस एंड द मेडिसिन्स यूज्ड टू क्योर देम। यहाँ पे मेडिसिन्स आपको बहुत कॉमन है, आपको पता है मेडिसिन्स क्या है। मेडिसिन्स क्या काम का आता है, जब आप बुखार हो जाता है, व्हेन यू गेट sick or when you get different types of diseases, what does the doctor prescribe? They prescribe different kinds of medicines, right? And it helps your body to cure, ठीक है। यहाँ पे जब बीमार होते हैं आप लोग, क्या होता है, मेडिसिन ये खाने से वो क्या हो जाता है, क्योर होने के लिए मदद करते हैं आपको, ठीक है। मेडिसिन के बारे में इतना ही है। एंटीबायोटिक्स आते हैं, फिर कई बार क्या होता है, एंटीबायोटिक्स किसका काम के लिए आता है, Antibiotics are recent discovery. Penicillin was the first antibiotic to discover. It was discovered by Alexander Fleming, ठीक है। यहाँ पे एंटीबायोटिक्स ये भी एक प्रकार का मेडिसिन में ही आता है, लेकिन इनका काम क्या है, एंटीबायोटिक्स का मेडिसिन से ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। आप लोग गलती नहीं सोचना है, एंटीबायोटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर मेडिसिन। इनका क्या काम है, कभी कभी आपका थ्रोट पे पेन होता है कि नहीं, टॉन्सिल जिसको कहते हैं, टॉन्सिल्स होता है, या फिर आपको निमोनिया हो जाता है, तो ये सब काम के लिए क्या कौन सा मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स लोग, एंटीबायोटिक्स का प्रेस्क्राइब करता है। और सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक्स क्या था, पेनिसिलिन बोल के कहता है उसको, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नाम आप लोगों को याद रखना है। तो वो जब आपका गला में टॉन्सिल हो जाता है, दर्द होता है, थ्रोट पेन होता है, या फिर निमोनिया हो जाता है, तभी डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करता है, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक्स और एक काम के लिए है कि पॉइजन को काटने का, पॉइजन जहर जिसको आप कहते हैं, ठीक है, जहर जिसको कहता है। तो जहर जब आपका शरीर में चला जाता है, उनका उल्टा क्या है, ये काम करने वाला है, वो जहर का उल्टा काम करता है, ये एंटीबायोटिक्स काम करता है। आपको कभी जहर आपने गलती से खा लिया या फिर कुछ कर दिया, तो डॉक्टर्स क्या करेगा, उनका एंटीबायोटिक्स ढूंढेगा, वो मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स ढूंढेगा, और वो लोग ये एंटीबायोटिक्स क्या करेगा, आपका शरीर को, वो पॉइजन को साफ करेगा आपका शरीर में, ठीक है। आपको समझ में आया होगा शायद। उसके बाद में यहाँ पे मेरे वैक्सीनेशंस के बारे में आता है, फिर वैक्सीनेशन कैसे डिस्कवर हुआ और ये क्या काम का आता है। ए फेमस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ए फेमस डॉक्टर एडवर्ड जेनर ऑफ इंग्लैंड पेव द वे ऑफ वैक्सीनेशन। थ्रू द वैक्सीनेशंस द बॉडी इज मेड टू डेवलप ए डिफेंस सिस्टम which makes it immune from diseases. Smallpox was a dreadful disease in 18th century. Thousands of people die of it. 18th century में आज से कितना, 18th century होगा तो अभी 21st century है, तो 200 या फिर 200-300 साल पहले क्या हुआ था, आज से 200-300 साल पहले स्मॉल पॉक्स करके एक बीमारी का नाम था, और वो क्या है, उनके कारण से बहुत सारा लोग मरने के लिए शुरू हो गया। उसी समय में ये व्यक्ति ने, एडवर्ड जेनर, ठीक है, ये नाम बहुत याद रखते हैं आपको, एडवर्ड
जेनर, ये व्यक्ति ने क्या किया, एंड स्मॉल पॉक्स का क्योर को निकाला उसने उसी समय में। वो किसका थ्रू से निकाला, वैक्सीनेशन करके। वैक्सीनेशन किसको कहता है हिंदी में, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा शायद, बेजी खाने के लिए इंजेक्शन जब मिलता है ना, उसको वैक्सीनेशन बोलता है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन क्या करता है, इट मेक्स आवर बॉडी टू इट मेक्स आवर बॉडी इम्यून फ्रॉम डिजीजेस। यहाँ पे क्या होता है, आपका बीमार आपका शरीर में नहीं घुसने के लिए ये वैक्सीनेशन काम आता है। और स्मॉल पॉक्स जैसे बीमारी लोगों को दूर भगाने के लिए ये इंजेक्शन वैक्सीनेशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। वो 18वीं सेंचुरी में, आज से 300 साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है। तो आपका प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस थ्रू वैक्सीनेशन हो गया। और यहाँ पे हेल्थ एंड हाइजीन पे हम आ जाएंगे अभी। द सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू प्रिवेंट डिजीजेस इज टू ईट न्यूट्रिशियस फूड एंड कीप द बॉडी एंड सराउंडिंग्स क्लीन। ग्रीन वेजिटेबल्स, राइस, पल्सेस, मिल्क एंड एनी सीजनल फ्रूट टेकन एवरी डे लीड्स टू ए हेल्दी लाइफ। यहाँ पे हेल्थ एंड हाइजीन पे आपको क्या पढ़ने के लिए मिलता है, द सिंपलेस्ट वे, आपको कोई खर्चा नहीं करना है, यू डोंट हैव टू स्पेंड मच मनी। स्पेशली आसाम जैसे जगह में क्या आपको बहुत सारा ऑर्गेनिक चीज़ मिलता है कि नहीं। आपके मम्मी पापा भी शायद करता होगा ऑर्गेनिक, जिसमें ज़्यादा मेडिसिन एडेड प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं करता है। हाँ, वैसे वाला जो ऑर्गेनिक चीज़ है, उन लोग ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइसक हो गया, उसके बाद में टमाटर, ये लोग अच्छे चीज़ है, जो अच्छा चीज़ है उनको ग्रीन्स वेजिटेबल्स लोगों को आप लोग खाना है। यहाँ पे आपका शरीर को अच्छा रखने के लिए सबसे पहले क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खाना है, आपको खाने मन नहीं होता होगा कई बार, है छोटा समय में मुझे भी खाने मन नहीं था, लेकिन ये ग्रीन वेजिटेबल्स क्या करता है, आपका हेल्थ को अच्छा रखता है। मीट विट नहीं, आजकल के समय में क्या होता है, मीट विट बहुत ही उसमें जर्म्स होता है, गंदा होता है, लेकिन ये वेजिटेबल्स लोग में क्या है, ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और अपना सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, ठीक है। आपके घर, आज आप लोग जब ये लेसन पढ़ रहे हो तो आप अपने घर का चारों तरफ में जाके आप लोग देखना कि कितना गंदा है। अगर गंदा है तो उसको साफ करना चाहिए आप लोगों को। क्यों? क्योंकि अगर साफ नहीं किया तो आप लोग क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। उससे जो गैस निकलता है वो गैस बहुत ही खराब है आपके शरीर के लिए, ठीक है। तो आप अपना अगर गंदा वंदा दिखता है तो अपना मम्मी पापा को बोलना है कि हमें अपना सराउंडिंग्स को क्लीन करना है, ताकि हम किस लिए क्लीन करना है, हम बीमार ना हो, ठीक है। स्पेशली आज का समय, कोरोना का समय में क्या है, आप लोग और भी अपना हेल्थ को ध्यान देना है। और ग्रीन वेजिटेबल सबसे खाना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा खाना है हर दिन। तो यहाँ पे आपने ये लेसन के बारे में आपने पढ़ा, थर्मोमीटर के बारे में, जो आपका हीट, आपका बॉडी का टेम्परेचर आप जो डिटेक्ट करता है। स्टेटोस्कोप, जो आपका शरीर पे जो कुछ बीमार होते थे, डॉक्टर्स आपको यहाँ पे कुछ लगाते ना चेस्ट पे आपका हार्ट बीट सुनने के लिए, तो उसको कहता है स्टेटोस्कोप। माइक्रोस्कोप, आपका जो जर्म्स लोगों को आप विच यू कैन नॉट सी फ्रॉम योर नेकेड आइज, उसको डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। और कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट में जोसेफ लिस्टर, उसने क्या किया, कार्बोलिक एसिड को इंट्रोड्यूस किया। वो किस काम के लिए आता है, ऑपरेशन से पहले, ठीक है। ऑपरेशन से पहले जब आप यहाँ पे कुछ ऑपरेशन होते हैं अंदर में, तो उसको उससे पहले क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग और डॉक्टर्स लोग, सॉरी, वो क्या करता है, साफ करते हैं कार्बोलिक एसिड से। जोसेफ लिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया। फिर एंटीडोट्स किसने इंट्रोड्यूस किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का जो व्यक्ति है, यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का जो व्यक्ति है, उसने एंटीडोट इंट्रोड्यूस किया। और वैक्सीनेशन मतलब जो इंजेक्शन होता है आप लोगों को डॉक्टर्स देते हैं ना, उनका इन्वेंशन कौन किया है, इंट्रोड्यूस कौन किया है, एडवर्ड जेनर नाम का इस व्यक्ति ने किया है। और हाइजीन में आप लोग, जैसे कि मैंने कहा, ग्रीन वेजिटेबल्स आप लोग, यू शुड ऑलवेज ईट द ग्रीन वेजिटेबल्स एंड विच आर हेल्दी, ठीक है। आपका शरीर के लिए जो हेल्दी है हमेशा वो खाना है, ठीक है। सो वी होप you guys have understood and got the basic things which this lesson is speaking about. The name of the lesson is development of the medical science. So this 3 is the main objective and you should remember it. Okay, so thank you. कितना